welcome in Zahra's classes, and today we are here again with another lecture, that is membrane transport in plasma membrane, and today we will deal with diffusion. So I am Dr. A. Zahra. Let's continue with the class. Starting with the lecture, put up with a basic question: what are paracellular and transcellular filtration? Of course, students, in coming slides you are going to get the answer to this question, and so for that you have to stay tuned for the complete video. Starting with diffusion. It is a method of transportation which is known as passive transport. As you all know, students, passive transport, it is that mode of transport of materials in and out of the cell where energy is not required. Okay, इस तरह के transport में energy required नहीं है. In previous lecture you can go to my description and check osmosis for your osmosis lecture. Today we will be dealing with diffusion and especially facilitated diffusion. And in this, first we will clear what is diffusion and actually what is passive transport. In previous lecture also we have discussed about passive transport. Passive transport क्या है? Passive transport वो transport है, वो mode of transport है जिसमें energy नहीं लगती है. There is no requirement of energy and it is फिजिकल प्रोसेस. इसमें किसी भी तरह का बायोकेमिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं होता है और इसीलिए ये एक फिजिकल प्रोसेस है. और कंपैरेटिवली अगर आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट को लें तो इसमें जो प्रोसेस है वो स्लो है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रोसेस जो है वो बहुत एज कंपेयर टू पैसिव ट्रांसपोर्ट इट इज अगेन अ fast mode of transport. Okay, then now let us discuss about passive transport as well as diffusion and how it happens. Let us see that. So students, here this is one very basic example. As you can see that this is a slopy road, and on this slopy road you can see that the dagger, the rock is thrown from there. It comes down without any expenditure of energy or without any extra efforts. But in this case, in second case, you can see here that here the person is dragging the stone, dragging the rock, और ये स्लोप के ऊपर वाले पोर्शन में लेके जाना है. तो इसे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में भी काम करना होता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे खर्च हो रही है. तो यही कॉन्सेप्ट जो है मोड आपके ट्रांसपोर्टेशन में भी लगता है. सेल मेम्ब्रेन या किसी भी बायो मेम्ब्रेन से जब मटेरियल इन एंड आउट ट्रांसपोर्ट होता है तो यही कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए कि जहां एनर्जी लगती है और जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट में जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें जाहिर सी बात है उसमें एनर्जी लगनी है. लेकिन जो बिल्कुल डाउन द ग्रेडियंट चलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चलते हैं, उस धारा में चलते हैं, तो उसमें उनको कोई एनर्जी नहीं लगती है और ये एक फिजिकल प्रोसेस है. नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड बट हियर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. So this is the basic difference between passive transport and active transport. Now coming on to the lecture main part, that is diffusion. What is diffusion? Diffusion of a substance across a biological membrane is known as passive transport, and as there is no expenditure of energy or any special activity required, the concentration gradient represents potential energy and drives diffusion. तो कोई भी diffusion किसी भी substance का biological membrane के across होता है और उसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, कि कोई स्पेशल एक्टिविटी नहीं रिक्वायर होती है, उस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट को आप पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसका एक आप मोड है डिफ्यूजन. अब आप देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या है. इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू यूनिफॉर्मली स्प्रेड इनटू अनदर बाय रैंडम मूवमेंट of its particles, molecules or ions from a region of a higher concentration to a region of lower concentration.
ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये डेफिनेशन है बच्चों। तो डिफ्यूजन क्या है? एक सब्सटेंस की एक वो टेंडेंसी होती है जिससे कि वो एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है और उसमें जो है वो डिफ्यूज होता है, उसमें वो उसके पार्टिकल्स जो हैं स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं इवनली, यूनिफॉर्मली, हर जगह स्प्रेड होते हैं। और ये इसका रीज़न क्या है स्प्रेडिंग का? क्योंकि कोई भी पार्टिकल किसी भी सॉल्यूशन में होता है, किसी भी सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा एक काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट में होते हैं, रैंडम मूवमेंट होता है। तो वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है और हायर लेवल से लोअर लेवल पे मूवमेंट होता है और यहाँ पे एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल होता है दोनों के बीच। तो इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बिना मेम्ब्रेन के भी होता है, कोई बीच में कोई पार्टीशन नहीं भी है तब भी होता है, और डिफ्यूजन जो है थ्रू मेम्ब्रेन्स भी होता है। अभी पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? एक्चुअली में ऑस्मोसिस जो है और डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है, लेकिन ऑस्मोसिस में जब आप देखेंगे तो उसमें जो मूवमेंट होता है इट इज द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट यानी वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करता है। लेकिन डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। डिफ्यूजन जो है वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये मॉलिक्यूल, ऑल मॉलिक्यूल्स या ऑल मटेरियल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल मटेरियल्स हो सकते हैं, चाहे सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेस हो सकता है। डिफ्यूजन आप गैसेस में भी होता है, वाटर में भी होता है, लेकिन ऑस्मोसिस जो होता है वो ओनली लिक्विड में ही आपको नजर आएगा, लिक्विड मीडियम में ही ऑस्मोसिस होता है। अनदर कि डिफ्यूजन जो है वो नॉर्मल भी होता है, बिना किसी मेम्ब्रेन के होता है, या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू भी होता है। लेकिन ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मस्ट है, उसका रिक्वायरमेंट जरूरी है। और डिफ्यूजन में एक चीज और बता दें कि इट इक्वलाइजेस द कॉन्सेंट्रेशन, जो हायर और लोअर लेवल तक मूवमेंट होता है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मॉलिक्यूल्स इक्वली डिफ्यूज होते हैं मीडियम के थ्रू। लेकिन ऑस्मोसिस में जो है इट डज नॉट इक्वलाइज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन द मीडियम। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच का। और अब हम डिफ्यूजन को डिटेल्स में यहाँ डिस्कस करेंगे। Here in this experiment we will discuss two experiments I have placed. In one we will discuss diffusion without membrane, and in next experiment we will see diffusion in presence of a membrane, semi permeable membrane. So here as you can see there is a beaker. In this beaker we have kept water as well as a sugar cube is placed in this beaker, in beaker A. After sometimes the sugar will start dissolving, okay, and in this process the sugar molecule move out in water. अब देखिए यहाँ पे sugar molecule जो है वो पानी में बाहर निकलना शुरू होते हैं और वो कॉन्स्टेंटली कोलाइड करते हैं। कॉन्स्टेंटली वो क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से वो टच में आते हैं, एक दूसरे से कोलिजन होता है, स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे से और कॉन्स्टेंटली कोलाइड करते हैं। और बीकर के वॉल से भी कोलाइड करते हैं, आपस में भी कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं और वो हर डायरेक्शन में वो मूव करने की कोशिश करते हैं। और इस रैंडम मूवमेंट की वजह से शुगर मॉलिक्यूल जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। आप यहाँ पे बीकर बी इसको दिया हुआ है नाम, यानी कुछ समय के बाद आपने जब बीकर ए में देखा तो ये जो पोर्शन है इसमें शुगर क्यूब नहीं दिखता है, बल्कि शुगर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं थ्रू आउट द वाटर इन द बीकर। और इसको आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं? इसको आप टेस्ट करके टेस्ट कर सकते हैं कि जो स्वीटनेस है वो पूरे पानी में शुगर की मिल चुकी है, और ये प्रूफ करता है कि यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ है। और इसकी वजह से जो मूवमेंट होता है, जो मॉलिक्यूल शुगर मॉलिक्यूल्स का कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होता है, और वो मूवमेंट जो है हेल्प करता है इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वाटर में, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट होते हैं, कुछ राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट होते हैं, तो ये सेम रेट से होता है मूवमेंट।
तो ये मूवमेंट जो है कुछ इधर कुछ उधर इस तरह का मूवमेंट जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, वो सेम रेट से होता है, जिसकी वजह से एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे रीजन क्या है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का? पार्टिकल्स का रैंडम मूवमेंट आप इसको बोल सकते हैं। और ये रैंडम मूवमेंट जो है आप इसमें देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूलर मोशन होता है, जिसको आप ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली रैंडम मूवमेंट में होते हैं, हमेशा मूवमेंट में होते हैं किसी भी मैटर में, तो उस फेनोमेना को हम ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि बेसिक लॉ है फिजिक्स का भी। तो यहाँ पे ये इवनली डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यू कैन सी देयर इज नो परमिएबल मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन इज देयर, ओनली सिंपल sugar cube is kept in water, and this after sometimes this sugar molecule they dissolve in it, they randomly get distributed because of their random movement, and you can check it by tasting the water in this beaker. So here you can also test it by taking crystal of copper sulfate. कॉपर सल्फेट का भी मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा थ्रू आउट वाटर, मतलब शुगर क्यूब की जगह आप कॉपर सल्फेट रखेंगे, अगर उसका क्यूब रखेंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को आप रखेंगे उसमें, तो कुछ समय के बाद कॉपर सल्फेट ब्लूइश कलर का होता है, कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वाटर जो है वो ब्लूइश कलर का हो गया। तो यहाँ पे आपको ये डिफ्यूजन दिख रहा है। ठीक है, उसी तरह से आप डिफ्यूजन, ये लिक्विड में आपने देखा, लिक्विड सॉलिड के बीच का डिफ्यूजन देखा, उसी तरह से आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग गैसेस होते हैं, अमोनिया होता है, कि किसी भी रूम के कॉर्नर में रख दीजिए, या आप एसेंस स्टिक, आप कहीं पे आप एसेंस स्टिक जला रहे हैं, कुछ समय के बाद जो है वो उसकी खुशबू, उसकी फ्रेगरेंस जो है पूरे रूम में फैल जाती है। तो ये भी एक डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है जो कि गैसेस में दिखता है। Okay, so this was example depicted to show diffusion taking place without any membrane. Now coming on to the next experimental setup, here you can see diagram, this is a diagram showing diffusion, and here you can see one setup is here. After sometimes you will see this, in this setup you will see a beaker, and in this beaker you will see, here you can see that in this beaker A you will find that part A, in this beaker A it is divisible into two parts, part A and part B, and here it is separated by a differentially permeable membrane. Okay, and here the beaker containing part A is filled with, यहाँ पे आप देखेंगे कि सॉल्ट सोल्यूशन है, जिसमें कि 15% जो है सॉल्ट है और बाकी 85% जो है वो वाटर है। एंड जो पार्ट बी है उसमें क्या है, उसमें पार्ट बी में आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल 100% वाटर है। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूल ऑफ बोथ सॉल्ट एंड वाटर ये कांस्टेंट रैंडम मोशन में है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सॉल्ट सोल्यूशन है यहाँ पर पार्ट ए में, ये सॉल्ट और वाटर का जो मॉलिक्यूल है, ये दिस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, और ये रैपिड रैंडम मूवमेंट हो रहा है, और आपस में एक दूसरे से कोलिजन भी हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे से ये कोलाइड करते हैं ये मॉलिक्यूल्स। देन क्या होता है, ईच मॉलिक्यूल देन मूव रैंडमली एंड they diffuse and the diffusion of population of molecule is you will see directional होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक इस डायरेक्शन में भी होगा और एक इस डायरेक्शन में भी होगा, तो ये डायरेक्शनल है। लेकिन ये डायरेक्शनल है, और ये मोशन की वजह से क्या होता है कि सॉल्ट मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूज होता है इस मेम्ब्रेन के थ्रू, ये डिफ्यूज होना शुरू होता है, मूव होना शुरू होता है इस मेम्ब्रेन के थ्रू, और ये पार्ट बी में डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो पार्ट बी है जिसमें केवल वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो भी इस डायरेक्शन से पार्ट ए में डिफ्यूज होना शुरू होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सॉल्ट का भी मूवमेंट हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल का भी डिफ्यूजन हो रहा है। तो सॉल्ट वाटर मॉलिक्यूल इसलिए डिफ्यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 100% था और यहाँ पे 85% था, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है यहाँ पे। तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल मूव हो रहा है। उसी तरह से पार्ट ए जो है पानी गेन कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, और पार्ट बी क्या कर रहा है, दूसरी तरफ पार्ट बी जो है वो सॉल्ट मॉलिक्यूल्स को, सॉल्ट पार्टिकल्स को वो गेन कर रहा है।
तो जो फ्लूइड लेवल है वो दोनों में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि दोनों में बराबर है। ऑस्मोसिस वाले एक्सपेरिमेंट में यू कैन गो एंड चेक माय लेक्चर ऑन ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस वाले लेक्चर में आप देखेंगे कि वहाँ पे जो लेवल है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस्ड है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ्लूइड का लेवल है वो दोनों पार्ट में बराबर है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे पानी का और सॉल्ट मॉलिक्यूल्स का, और इसकी वजह से एक फाइनल रिजल्ट क्या होता है कि पूरे बीकर में आप देखेंगे कि जो सोल्यूशन है वो सॉल्ट सोल्यूशन तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल वो कंटिन्यूअसली डिफ्यूज हो रहे हैं दोनों डायरेक्शन में, पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, सॉल्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से भी जा रहा है, एज वेल एज सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करते हैं, और इसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम दोनों साइड में बन जाता है मेम्ब्रेन के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी एक डिफ्यूजन है जो कि मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, और जहाँ पे आप वाटर और सॉल्ट का यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव बीन वेरी मच क्लियर अबाउट डिफ्यूजन, जो नॉर्मल भी होता है बिना मेम्ब्रेन के, और यहाँ पे विथ इन प्रेजेंस ऑफ अ मेम्ब्रेन. So now we can define diffusion in a different way also. अगर हम diffusion को दूसरी तरीके से define करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले let us study about concentration gradient. Concentration gradient क्या होता है कि it is the difference in concentration of material, difference in concentration of material on two sides of a membrane. अभी आपने देखा एक तरफ 15% सॉल्ट था और 85% वाटर, दूसरी तरफ 100%. तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन जो मटेरियल का है, एक तरफ 100% है वाटर, एक तरफ 85% है, तो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है? ए बी पार्ट में, और ए पार्ट में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है? सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. तो ये क्या हो रहा है? ये जो डिफरेंस है ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मटेरियल ऑन टू साइड ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. और जितने भी नॉन लिविंग सिस्टम्स हैं उसमें जो मॉलिक्यूल कहीं मूव भी करते हैं ना, तो वो डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कि ग्रेडियंट के हिसाब से हायर टू लोअर में जाते हैं. लेकिन लिविंग सेल्स में हमेशा ऐसा नहीं होता. लिविंग सेल्स में क्या होता है? लिविंग सेल्स में कभी कभी आपको लोअर से हायर की तरफ भी जाना होता है. तो ये एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इसको आप समझ लीजिए. अब डिफ्यूजन में क्या दूसरा डेफिनेशन, जो पहला डेफिनेशन आपने देखा उसी से हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्यूजन को और तरीके से इसमें लिखा है कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन separating the two fluids with same hydrostatic pressure but different concentration of solute. तो ये मूवमेंट होता है. किसका मूवमेंट? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है थ्रू पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, जहाँ की दोनों फ्लूइड जो है एक प्रेशर से एक प्रेशर होता है, उसमें कौन सा प्रेशर होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है. कहीं पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन एक पार्ट में अलग होगा, कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन जो है अलग होगा. जैसे आपने अभी सॉल्ट एंड वाटर का देखा कि एक पार्ट में 15% सॉल्ट था तो दूसरे पार्ट में 0% सॉल्ट था, लेकिन बी पार्ट में 100% वाटर था तो ए पार्ट में 85% था. तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट डिफर होता है, और लेकिन प्रेशर जो है लिक्विड का जो प्रेशर है, फ्लूइड्स का जो प्रेशर है, दोनों तरफ वो सेम होता है. और और वो लिक्विड अगर एक मेम्ब्रेन से सेपरेट है तो उसमें मूवमेंट जो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, उसको आप कहते हैं डिफ्यूजन. तो यहाँ पे आई थिंक सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन इज क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, let us see what happens. So here you will see that diffusion takes place into through semi permeable membrane in two ways. दो वे से अभी आपने पढ़ा. एक लिक्विड मैट्रिक्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और इसमें हम देखते हैं कि लिक्विड मैट्रिक्स ट्रांसपोर्ट क्या होता है. लिपिड मैट्रिक्स ट्रांसपोर्ट जो होता है वो फैट सॉल्युबल और न्यूट्रल सब्सटेंस को पास कराने के लिए होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपने मॉडल पढ़ा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल में आपको पता है कि लिपिड बाय मॉलिक्यूलर लेयर है, और प्लस उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि उसमें एक हेड है जो कि हाइड्रोफिलिक है, और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पैसेज फैट सॉल्यूबल सब्सटेंसेस जो फैट में घुल सकते हैं, फैट में सॉल्यूबल हो सकते हैं, फैट सॉल्यूबल सब्सटेंस या कोई न्यूट्रल सब्सटेंस जो मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है,
और ऑन द बेसिस ऑफ लिपिड सॉल्युबिलिटी, यानी जो लिपिड में सॉल्युबल होगा और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से वो मूव कर सकता होगा, और वो सब्सटेंस जो कि फैट सॉल्युबल होंगे उनके मूवमेंट को आप देख सकते हैं लिपिड मैट्रिक्स ट्रांसपोर्ट आप कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सारे फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या मेम्ब्रेन आप बोल सकते हैं, और यहाँ से ये मूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये लिपिड में आराम से इनकी एफिनिटी है, ये लिपिड से पास हो सकते हैं, और ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस मिलती है। और यहाँ से ये मूवमेंट जब होता है उन पार्टिकल्स का जो कि केवल फैट में सॉल्युबल है और या न्यूट्रल सब्सटेंस है, केवल उन्हीं पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, तो उस ट्रांसपोर्ट को आप कहते हैं लिपिड मैट्रिक्स ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ट्राईमेथिल सिट्रेट, मिथाइल अल्कोहल, डायथिल यूरिया, तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं, और कब ये केवल लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हैं ये यहाँ पे मूव होते हैं। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, here you will see मेम्ब्रेन चैनल। मेम्ब्रेन चैनल भी है कि यहाँ पे सिंपल आप देख रहे हैं कि मूवमेंट हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लिपिड सॉल्युबल डिफ्यूजन में। मेम्ब्रेन चैनल में क्या होता है? द सेल मेम्ब्रेन्स पजेस नैरो चैनल्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू कैन सी नैरो चैनल्स। सेल मेम्ब्रेन है और उसमें चैनल्स बने हुए हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय टनल प्रोटीन। ये चैनल किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के। आपने देखा होगा, जब यू कैन गो टू माय लेक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल्स, तो वहाँ पे जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है यू विल फाइंड दैट जो एम्बेडेड प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो प्रोटीन्स में चैनल बने होते हैं, उनको ट्रांस प्रोटीन भी कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन भी कहते हैं या चैनल प्रोटीन। तो ये चैनल प्रोटीन्स क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन में एक नैरो चैनल बनाते हैं, और इसी चैनल से वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जो हैं वो पास ऑन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके आयंस पास होते हैं, और ये आराम से इन बायोमेम्ब्रेन्स के थ्रू डिफ्यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं फिल्ट्रेशन और डायलिसिस में। फिल्ट्रेशन और डायलिसिस जो है ये पोर्स और इन चैनल्स से होते हैं, और ये उनके लिए, उन सब्सटेंसेस के लिए है जो केवल वाटर एंड वाटर सॉल्युबल है। जो फैट में सॉल्युबल नहीं है वो इस प्रोसेस के थ्रू, इस चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन जो फैट में सॉल्युबल हैं वो लिपिड मैट्रिक्स ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होते हैं या डिफ्यूज होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, हाँ ये वन मोर थिंग इज गिवन हियर दैट जो मॉलिक्यूल्स इन चैनल्स के जो डायमीटर होता है वो डायमीटर से कम होगा, अगर उन मॉलिक्यूल्स का डायमीटर, तो ही वो पास ऑन होंगे। तो इन चैनल्स का डायमीटर जो है अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। अगर वो मॉलिक्यूल्स जो उससे छोटे हैं तो वो आराम से इस चैनल के थ्रू वो डिफ्यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, वी विल सी व्हाट हैपेंस in next, that is the example which you have seen in filtration. It is the movement of molecules through semi permeable membrane with pressure developed extraneous factors। ठीक है ना, ये प्रेशर की वजह से ये आप को ये चीज़ें नज़र आती हैं। ये फिल्ट्रेशन जो है वो प्रेशर की वजह से होता है, और ये क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ छन्ना, स्ट्रेनिंग फाइनली थ्रू अ फाइनली पोरस पार्टीशन। बहुत पोरस पार्टीशन होता है, झिल्ली होती है या कोई मेम्ब्रेन होता है जिसमें पोर्स होते हैं, तो पोर्स के थ्रू ये बहुत फाइन चीज़ें जो छन के आती हैं वो उस प्रोसेस को आप कहते हैं फिल्ट्रेशन। ओके, और ये फिल्ट्रेशन जो है ये होता है प्रेशर डेवलप होने की वजह से, और ये आप इसका एग्जांपल आप यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किडनीज में होता है, और इसमें प्रेशर कहाँ से डेवलप होता है? ये हाई ब्लड प्रेशर, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं, जो बाउमेंस कैप्सूल में, ये बाउमेंस कैप्सूल आपने नेफ्रॉन पढ़ा होगा यूनिट में, यहाँ पे जो कैपिलरीज होती हैं इसको आप ग्लोमेरुलर कहते हैं, और यहाँ पे प्रेशर बनता है, और ये प्रेशर से जो है फिल्ट्रेशन शुरू होता है। तो ये एग्जाम्पल आप फिल्ट्रेशन का देख सकते हैं, वो है आपके किडनीज में मोस्ट प्रेवलेंट आप देख सकते हैं। नाउ डिफ्यूजन ऑफ स्मॉल डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन सॉल्यूट टू अनदर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको आप कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? इट इज डिफ्यूजन ऑफ स्मॉल डिजॉल्व मॉलिक्यूल, जो डिजॉल्व हैं, जो उसमें क्या कहते हैं, किसी भी सोल्यूशन में डिजॉल्व हैं, और उनका मूवमेंट, उनका डिफ्यूजन फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको आप कहते हैं डायलिसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स जो है वो डिजॉल्व नहीं भी हैं, उनका छनना,
उसको आप फिल्ट्रेशन कहते हैं। लेकिन डायलिसिस जो है वो डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक सोल्यूशन में, तो एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन में जब वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं डायलिसिस। ओके, तो इस तरह से ये दो एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। और ये एक डायलिसिस जो है वो स्लो प्रोसेस है और इनसफिशिएंट है किसी भी सेल की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें आप देख रहे हैं जो कि चैनल्स के थ्रू या पोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं या डिफ्यूज्ड हो रहे हैं। ठीक है, सो नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। Now that was diffusion. Here we will come on to facilitated diffusion. What do we mean by facilitated diffusion? Facilitated diffusion यानी कि यहाँ पर आप किसी भी तरह का जो है एक फैसिलिटी दे रहे हैं, एक चैनल या कोई को ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, मेंबर दे रहे हैं, किसी एक हेल्प से जो कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है, पैसेज दे रहे हैं कोई भी एक हेल्प के थ्रू, तो उसको आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट बाय कैरियर प्रोटीन। एक प्रोटीन कैरियर होता है जो एक सब्सटेंस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कैरियर लग रहा है और जो कैरियर प्रोटीन यहाँ पर है उसको आप परमिएजेस कहते हैं और ये ट्रांसपोर्ट करता है डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है ना, तो ये देखिए यहाँ पे ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे डायरेक्टली लिपिड लेयर से जो डिफ्यूजन हो रहा है, डायरेक्टली लिपिड से आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे आपके डायरेक्टली नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक कोई ना कोई एजेंट चाहिए होता है ताकि वो एक एंड से दूसरे एंड तक चीज़ों को पास ऑन कर सकें। तो यहाँ पर लीवर सेल्स और आरबीसीज में ग्लूकोज जो है वो सेल मेम्ब्रेन से मूव होता है और इसको ये होता है वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बाय स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन। ठीक है ना, नाउ कमिंग ऑन टू अगेन दूसरी चीज़ क्या है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, गेट्स होते हैं यहाँ पे। सेल मेम्ब्रेन्स पजेस चैनल फॉर पैसेज ऑफ डिफरेंट आयंस, और वो चैनल्स जो हैं वो क्लोज्ड रहते हैं बाय स्पेसिफिक गेट्स, वो क्लोज्ड होते हैं। और ये मेम्ब्रेन से जो जिस चैनल से मेम्ब्रेन के आयन अलग अलग आयंस पास होते हैं वो गार्डेड होते हैं या वो क्लोज्ड होते हैं बाय गेट्स। तो यहाँ पे दो तरह के गेट्स काम करते हैं आपके, और वो गेट्स हैं आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग, दो गेट से होता है, एक वोल्टेज गेट से होता है और एक केमिकल गेटिंग से होता है। तो वोल्टेज गेटिंग क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है चेंज होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और इसकी वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गेट्स होता है। ठीक है, और केमिकल गेटिंग क्या होता है, केमिकल कंबाइंस विथ चैनल प्रोटीन, और इस केमिकल के कॉम्बिनेशन से चैनल प्रोटीन से जब केमिकल कंबाइन करता है तो एक कॉन्फॉर्मेशन चेंज होता है, एक स्ट्रक्चरल चेंज होता है और उसकी वजह से गेट्स जो हैं वो खुल जाते हैं या बंद हो जाते हैं। तो ये दो तरह के आप देख सकते हैं गेट्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। जब चैनल्स के थ्रू आयंस पास होते हैं तो वो गेट्स के थ्रू होते हैं, और ये गेट्स जो हैं हमेशा खुले नहीं होते या हमेशा बंद नहीं होते, वो एज पर रिक्वायरमेंट्स दे ओपन और क्लोज बाय ईदर वोल्टेज गेटिंग और बाय केमिकल गेटिंग। So I hope so students this was clear to you. Now coming on to the factors that affect the rate of diffusion. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ये चीज़ें अगर होंगी तो डिफ्यूजन का रेट हाई होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स, जितना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स का तो वो डिफ्यूजन रेट बहुत एक्टिव होगा, बहुत फास्ट होगा। टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, जितना टेम्परेचर हाई होगा डिफ्यूजन उतना आसानी से होगा, टेम्परेचर लो होगा डिफ्यूजन कम होगा। देन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ डिफ्यूजन पाथवे, यानी कि कितना एक्सपोज है, कितना पाथवे मिल रहा है, कितना डायमीटर मिल रहा है मूवमेंट के लिए, वो भी डिपेंड करता है। ज़्यादा एरिया होगा तो डिफ्यूजन आसानी से होगा, कम एरिया होगा तो डिफ्यूजन थोड़ा सा लो होगा। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Whereas some factors they are inversely proportional, यानी अगर ये चीज़ें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है तो फिर डिफ्यूज़न जो है वो स्लो होगा, मॉलिक्यूलर वेट कम है तो वो आपके डिफ्यूज़न जो है वो
फास्ट होगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फैक्टर्स हैं। डेंसिटी मीडियम कितना गाढ़ा है, कितना विस्कस, कितना डेंस है, उसके हिसाब से डिफ्यूजन रेट कम या ज़्यादा होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड डिस्टेंस, कितना दूरी मूवमेंट करना है मॉलिक्यूल्स को, कहाँ से कहाँ डिफ्यूज करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस, दिस ऑल्सो अफेक्ट्स, दिस फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन स्लो होगा, डिस्टेंस कम होगा तो डिफ्यूजन फास्ट होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, किसी भी एक रूम में अगर आपने एसेंस स्टिक लगाई तो उस रूम में बहुत जल्दी फ्रेगरेंस पहुंचती है, लेकिन दूर के रूम में या दूर के एरिया में वो फ्रेगरेंस लेट पहुंचती है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑल्सो। So here were some of the factors affecting the rate of diffusion. अब डिफ्यूजन का रोल क्या है? इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। यानी अभी आपको पता है स्प्रेड करता है सोल्यूट्स और आयंस को पूरे साइटोप्लाज्म में, सेल के ज़रूरत के हिसाब से वो मूवमेंट कराता है, और ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और इट एनेबल्स सेल टू टेक अप एंड गिव आउट सम मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स को लेना, कुछ मटेरियल्स को देना, ये डिफ्यूजन इसको बहुत ईजी करता है। देन कॉन्ट्रीब्यूट्स इन ट्रांसपीरेशन, आपको ये पता है ट्रांसपीरेशन जब होता है तो पानी का मूवमेंट जो हो रहा है तो वो डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है, तो ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है ट्रांसपीरेशन में। फेरोमोन्स, फेरोमोन्स क्या होते हैं? एक स्पेशल केमिकल होते हैं, इंसेक्ट्स के ग्लैंड्स में होते हैं, और ये फेरोमोन्स जो है वो इंसेक्ट अपने स्पीशीज़ के जेंडर को, अपने स्पीशीज़ के अपोजिट सेक्स को वो इनवाइट करता है या उसको ट्रेस करने के लिए यूज़ करता है। ये फेरोमोन्स वो हवा में छोड़ता है, और इसकी जो फ्रेगरेंस होती है या इसके केमिकल को जो इसकी स्पीशीज़ है वो अट्रैक्ट होती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिफ्यूजन का। इट स्प्रेड्स फेरोमोन, ये फेरोमोन को स्प्रेड करता है हवा में, और ग्लैंड से निकलता है इंसेक्ट के, और वो डिस्टेंट मेंबर्स कहीं हैं तो उनको वो ट्रेस करने में हेल्पफुल होता है। देन नेक्स्ट इज योर, so those all were the roles of diffusion, how diffusion plays a very important role in the biological activities. The very first question that was put up before beginning of the lecture was what are paracellular and transcellular filtration. देखो बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू तो होता ही है, जो कि सेल के अंदर होता है, विद इन सेल के अंदर होता है। अगर ये एक सेल है तो इसके मेम्ब्रेन्स के थ्रू इन एंड आउट जो मूवमेंट होता है वो तो होता ही है। इसके अलावा जो सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, या इंटरसेलुलर स्पेस जो होती है उसके बीच में जो मूवमेंट होता है, तो उस मूवमेंट को यहाँ पर आपने डिस्कस किया, और उस फिल्ट्रेशन को आप पैरासेलुलर या ट्रांससेलुलर फिल्ट्रेशन में आप इसको डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे पैरासेलुलर और ट्रांससेलुलर क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पैरासेलुलर फिल्ट्रेशन होता है वो लीकी जंक्शंस के थ्रू होता है, और जो गैप का साइज होता है वो 40 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ये यहाँ पे देखिए, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल का है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे सेल का है, और ये आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, ये जो ग्रे में दिख रही है। अब ये दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का जो कनेक्शन है वो एक जंक्शन से होता है, और वो जंक्शंस होते हैं जंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं। तो दो सेल्स के बीच का जो ट्रांसमिशन होता है या चीज़ों का मूवमेंट होता है, तो वो कुछ चैनल्स के थ्रू होता है या कुछ गैप्स के थ्रू होता है। और ये चैनल्स या गैप्स जो आपको हम बता दें कि ये कई तरह के होते हैं, लाइक डेस्मोसोम्स होते हैं, टाइट जंक्शंस होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटास होते हैं, तो ये डेस्मोसोम्स होते हैं। तो ये ब्रिजेस होते हैं दो सेल के बीच में कनेक्ट होने के लिए। तो पैरासेलुलर जो होता है, जो पैरासेलुलर फिल्ट्रेशन जो होता है वो ये होता है आपके लीकी जंक्शंस के थ्रू या गैप्स के थ्रू। ये देखिए यहाँ पे गैप्स हो रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, ये एक दो सेल्स के बीच है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, और यहाँ पे आप देखिए कि गैप्स के बीच ये गैप है यहाँ पे, और इस गैप के थ्रू ये डायरेक्टली होता है, तो इसको आप कहते हैं पैरासेलुलर ट्रांसमिशन। लेकिन वहीं पे अगर एक जगह मूवमेंट हो रहा है, और उस मूवमेंट में ये अपर लेयर है और ये लोअर लेयर है, जिसको आप बोलते हैं अपाइकल मेम्ब्रेन और बेसोलेटरल मेम्ब्रेन।
तो अपाइकल मेम्ब्रेन और बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के बीच में जो डायरेक्ट मूवमेंट होता है, यहाँ पे कोई गेट, यहाँ पे कोई भी जिसको बोलते हैं कि जंक्शंस यहाँ पे नहीं होते हैं, डायरेक्टली मेम्ब्रेन के थ्रू ये मूवमेंट हो रहा है दो सेल्स के बीच में। तो ये इस तरह के ट्रांसपोर्ट को आप ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस एन एपिथेलियम, कोई भी एपिथेलियम, बाय पासिंग थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेलुलर स्पेस के बीच से पास होके ये आता है। तो यहाँ पे सब्सटेंस का मूवमेंट दो सेलुलर के बीच का जो जंक्शन है उसके थ्रू पास होके आता है। अब जैसे यहीं पे देख लीजिए, ये अगर मूवमेंट होगा तो यहाँ से यहाँ होगा, तो इसको आप कहेंगे पैरासेलुलर। लेकिन जहाँ डायरेक्टली एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन के थ्रू बिना किसी जंक्शन के, बिना किसी गैप के अगर ये हो रहा है, डायरेक्टली हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे डायरेक्टली हो रहा है, तो यहाँ पे एक एंड को आप कहते हैं अपाइकल मेम्ब्रेन और नीचे के एंड को आप बेसोलेटरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में डायरेक्टली जब मूवमेंट होता है सब्सटेंस का थ्रू सेल, तो उसको आप कहते हैं ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट। ये एनर्जी इन्वॉल्व करता है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन पैरासेलुलर फिल्ट्रेशन में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, इट इज़ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो यहाँ पर 40 एंगस्ट्रॉम यूनिट जो साइज होती है गैप की, उतने साइज से अगर छोटा होता है कोई भी मॉलिक्यूल, तो वो बहुत आराम से वो पास ऑन हो जाता है। ठीक है। ट्रांससेलुलर फिल्ट्रेशन जो होता है वो रीनल ग्लोमेरुलस में होता है या फिर गट रीजन में होता है, और या इसमें होल्स होते हैं, फेनिस्ट्रेशंस होते हैं, छेद होते हैं, और इसकी वजह से मूवमेंट होता है चीज़ों का, बहुत आराम से ट्रांसफिल्ट्रेशन शुरू होता है। तो यहाँ पे बच्चों कुछ बेसिक चीज़ें मैंने क्लियर करी आपको, और ये बेसिक चीज़ें होपफुली आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। यू कैन अगेन लिंक विथ सम ऑफ द थिंग्स लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ or model of plasma membrane as well as osmosis, and if you want to know more you can go to the slides, to the lectures that I have given in description box, and you can see the details there. So students, I hope so the things must have been cleared. In next lecture we will meet again with another transport system, that is active transport. Till then you study hard. Thank you, and if you have understood, you can like it, share it and subscribe it.